So hey there, here I will solve a problem which name is you are in the light. Basically, original problem is IT restaurant. So basically, I will try here to solve using this question. So basically, first we have to read the question, then after basically I am I will try this question first, then I might answer by wrong at 20 test case, then I will try this question again and search it at where I was doing mistake, and then think again. Okay. So basically, what is the question? Question is that CTN has a huge problem. Then I will tell you the question briefly, that what is the mean of question and what the question want to say. तो firstly is that here हमारे पास क्या है कि we have a tree. Basically we have n junction which were connected by n minus 1 root. So firstly, let's suppose we have a tree, okay, then which has n minus 1 root, okay, which has n minus 1 root. So let's suppose this is a junction 8 1 2 3 4 5 6, and this is the road which is connected by 1 and 3, basically pair of junction. Okay, then what the question is saying, that he decided that recently the mayor come with the elements. Basically mayor come origin. हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं. City and has a huge problem with the roads, food and IT infrastructure in low total. The city has n junction. Some pairs of them are connected by bidirectional roads, and the roads connected n minus 1 roads. Okay, तो मतलब मैं बता चुका हूँ ये कि ये एक ट्री है जो जिसमें n माइनस 1 रूट कनेक्टेड है. तो बेसिकली हमेशा कोई भी अगर आपको दे रखा है कि एक कनेक्टेड कंपोनेंट है जिसमें n माइनस 1 एजेस हैं और बेसिकली n ईयर वर्टेक्स फॉर वर्टेक्स, देन वो हमेशा ट्री ही होगा. देन द मेयर केम अप विद द प्रॉब्लम, eliminates the problem with the food, the IT infrastructure. At the same time, he decided to put the city junction restaurant of two well-known cafe for IT professional, Mac and Burger King. Then since not friend, so basically this is the condition. Each junction must have at most one restaurant. Okay, then city have at most one restaurant. So firstly at most yani 1 or 0. Okay, first case. Okay. Second thing is that each restaurant belongs to a McDonald's or Burger King. Okay, each network should build at most at least one restaurant. Okay, okay, and there is no pair junction that are connected by a roads and contain restaurant of a different network. There is no pair of junction. There is no pair of junction that are connected by a road and contained. There is no pair of junction that are connected by a road and contain restaurant of a. Then we will take this example and try to solve this question. Basically 1 2 2. Okay, 2 2 3. Okay, then 3 to 4 and 4 to
5 ओके देन नाउ हम देखेंगे कि इसका बेसिकली वो क्या है कि what trying to say that man this is the important line of this question कि there is no pair of junction such that are connected by routes and contain restaurant of different network ओके बेसिकली क्या है कि कोई भी रोड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सपोज हम मैक को बोल रहे हैं ब्लू ओके लेट्स सपोज बर्गर किंग से बी एंड ओके देन कंडीशन क्या है कि अगर ये एक ही रोड से जुड़ा हुआ है देन यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट नहीं हो सकते अगर यहाँ पे बर्गर किंग है तो यहाँ पे भी बर्गर किंग होना चाहिए और अगर यहाँ पे बर्गर किंग है तो यहाँ पे भी बर्गर किंग होना चाहिए ओके बेसिकली ये तो नेक्स्ट पढ़ते हैं द मेयर इज गोइंग टू अ larger tax from each restaurant now help him to making a total number of restaurants as large as possible okay help him to analyze the situation and all the a comma b can belong to McDonald's and b then we have to sum a plus b as large as possible we have given a condition each junction must have at most one restaurant so maybe it should be a 1 or 0 and second condition is that a plus b largest so basically what should be a maximum what can be a maximum a plus b where a is a McDonald and b is a Burger King okay then क्या हो सकता है बेसिकली मैक्सिमम a plus b क्या हो सकता है कि अगर मैं इसको इसमें कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं यहाँ पे इस जंक्शन पे और इस पे मान लो कि ये मैक है मैकडोनल्ड है और यहाँ पे सब बर्गर किंग है ओके तो मैक्सिमम एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि मैकडोनल्ड भी होना चाहिए और बर्गर किंग भी होना चाहिए दोनों ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि उस सिटी में मैकडोनल्ड ही है और बर्गर किंग है नहीं बर्गर किंग और मैकडोनल्ड ग्रेटर देन 0 ओके ग्रेटर देन 0 बेसिकली तुम ये दिया नहीं है बट तुम एग्जांपल से समझ सकते हो कि मतलब कैसे उसने डिफाइन किया हुआ है कि बेसिकली अगर तुम चाहो तो यहाँ पे बेसिकली इफ अगर इसको हम नहीं ले तो और तो एक मैकडोनल्ड और 3 बर्गर किंग ओके तो बेसिकली ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे कि there is no pair of junction that are connected by a road and contains restaurant different network तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा एक भी पेयर नहीं है जो कि डिफरेंट एक रोड से जुड़ा हुआ हो और उस रोड के एजेस पे डिफरेंट रेस्टोरेंट हैं बेसिकली अगर तुम यहाँ पे देखो तो अगर तुम देखो यहाँ पे तो अगर यहाँ पे बर्गर किंग है बर्गर किंग है देन यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है नहीं बेसिकली अगर यहाँ पे मैक हो जाता तो कंडीशन फॉल्स हो जाती ओके एंड यहाँ पे बर्गर किंग है तो यहाँ पे भी बर्गर किंग यानी ये एजेस से जो जुड़े हुए हैं उस पर सेम रेस्टोरेंट हैं दोनों की वर्टिसेस पे यहाँ पे भी सेम वर्टिसेस है ना तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकता है ए प्लस बी हमेशा ए प्लस बी ऑलवेज पॉसिबल कितना हो सकता है n-1 बेसिकली एक बार हमने ये ले लिया नाउ सेकंड टाइम व्हाट विल वी डू वी विल टेक दिस एंड नाउ नॉट विल टेक दिस ओके देन व्हाट इज द कंडीशन नाउ 2 बर्गर किंग 2 मैकडोनल्ड एंड 2 बर्गर किंग तो एक कंडीशन क्या होगी पहली कंडीशन क्या थी 1,3 second is that 2,2 now third is that अगर हम इसको नहीं लें है ना तो 3 बर्गर किंग और एक तो हमको यही बताना है कि
व्हाट इज द ऑल, बेसिकली हमको बताना ये है कि द नंबर ऑफ सॉर्ट पेयर्स, ओके, कि कितने पेयर्स हम बना सकते हैं, ओके। तो बेसिकली व्हाट वाज माय फर्स्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज दैट, एक एग्जांपल, ओके। तो वेयर आई एम डूइंग रॉन्ग on a 20 test cases, let's suppose we will generate this graph. Then how can we generate this graph? Do that बेसिकली मैं क्या कर रहा था इसमें कि मैंने इसको लिया, ठीक है, मैंने बेसिकली इसके चाइल्ड पे गया, मैंने लिया, देन कंडीशन मैंने क्या किया कि अगर मान के चलो इसको नहीं लेंगे, देन इसको नहीं लिया, ओके, देन इस पे गया, इसको नहीं लिया, देन फिर मैंने इसको नहीं लिया, देन फिर मैंने ऐसे ऐसे मैंने कंडीशन बना दी। लेकिन इसमें हमको एक कंडीशन और ध्यान रखनी पड़ेगी कि लेट सपोज कि मैं यहाँ पे एक एज लगा दूं ना, और नाउ लेट सपोज कि मैं इसको यहाँ से काट दूं, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स को जनरेट करने का? बेसिकली क्वेश्चन ही में यही है कि हमको डिफरेंट डिफरेंट पेयर जनरेट करने हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी, हम कितना पेयर्स प्रिंट कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली देखो, इसको हम मैक बोल रहे हैं, ठीक है, मैक, ये हमने काट दिया, तो इसको भी मैक बोल सकते हैं, इसको भी मैक बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम बर्गर बिन, ठीक है। तो कितना बर्गर बिन हो गया? 3, और कितना, और टोटल इसमें से एक हटा दो तो आई थिंक 6, ओके, क्योंकि 1 2 3 4, सॉरी, तो अगर हम एक को हटा दें तो कितना बचेगा? इसलिए अब मैं इस एग्जांपल को नहीं ले रहा हूँ, जस्ट मैंने ऐड किया है उसी हिसाब से ले रहा हूँ। तो 3, तो ये रहा, तो 3 तो ये बर्गर किंग वाला, और ये कितना हो गया? 3 और 3 6, और 3 9, ओके। एक पेयर ये बनेगा। सेकंड पेयर कौन सा बनेगा? सेकंड पेयर को बनाने के लिए बेसिकली हमको क्या चाहिए कि सेकंड पेयर एक ऐसे भी तो हो सकता है कि सबसे पहले इसको इंक्लूड किया ना, हम इसको इंक्लूड करें बर्गर बिंग में, और इन दोनों को इंक्लूड करें, इन तीनों को इंक्लूड करें मैकडोनल्ड में। तो एक पेयर कौन सा बन सकता है? बेसिकली हम इसको अच्छे से समझाने के लिए इसको 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10, ओके, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज दैट 3 और 10। नाउ अगर मैं अगर मैं सबसे पहले मैंने इसको लिया 4 बर्गर बिंग, नाउ मैं बर्गर बिंग को लेने के लिए इन दोनों को ले रहा हूँ, तो टोटल बर्गर बिंग कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कितना बचा? आई थिंक 5, ओके, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 बचा, ठीक है, ठीक है। ये 10, ठीक है, 3 10 7 13, because 3 plus 10 13 6, because the tree has 14 node, then 3 plus 10 13, 7 plus 6 13, okay। now एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि हम इसमें इसको सबको ही बर्गर बिंग बोल दें और इसको सबको मैक बोल दें, क्योंकि बेसिकली हमको डिस्कनेक्ट यहाँ से किया है, ओके। तो हम कोई से भी एक डिस्कनेक्ट, कोई सा भी एक कनेक्टेड कंपोनेंट्स को या तो बर्गर बिंग बोल सकते हैं या फिर मैकडोनल्ड बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाला लिया, देन फिर मैंने ये वाला लिया, इन दोनों के लिया, फिर मैंने इन तीनों को ले लिया, ओके। कितना हो गया? 3 और 4 7, 7 और 3 10, ओके, और देन 3, ओके। नाउ अब ऐसा भी हो सकता है कि हम इन दोनों को लें और इसको ना लें, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम हमने इसको लिया, देन हमने इसको लिया, फिर हम इसको लिया, अब हम क्या करेंगे? अब इसको लेंगे, ये वाले को, इसको लेंगे,
7 और बेसिकली 6 और देन फिर हम बेसिकली हम तीनों को ले चुके हैं ना, देन ओके ये तो एक। अब हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जो हमने इसके साथ किया है ना, अब हम 10 और 3 कि पूरा हमने इसको कितना ले लिया, इस पूरे को हमने मैक ले लिया। पहली वाली कंडीशन को हम द्वारा रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे कि ये पहले बर्गर बिंग के लिए 3 था, अब हम इसको मैक के लिए, अब हम बर्गर मैक के लिए 3 बनाएंगे और बर्गर किंग के लिए 10 बनाएंगे। बेसिकली ये ए है और ये यहाँ पे बी है, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट ऑल द केसेस, ये समझ में आ गया होगा कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर 3 और फॉर एग्जांपल अगर 3 बर्गर बिंग है ना, और ये 2 मैक है, तो नेक्स्ट टर्न में ये बर्गर, ये इसको मैक बोल सकते हैं और ये बर्गर बिंग हो सकता है नेक्स्ट टर्न में। तो बेसिकली हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी है, बेसिकली हम इन सबका रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये 3 to 10 है ना, और देन 10 to 3, ओके, तो बेसिकली 6 to 7। तो बेसिकली ये सेम आ रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम आएगा, वो जस्ट एग्जांपल। अगर इसमें मान के चलो मैं हयान 5 नोड जोड़ दूं, देन ये सभी डिफरेंट आएंगे, बेसिकली ये सभी डिफरेंट आएंगे, ओके। ये तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मोटो क्या है कि इस क्वेश्चन में ये क्या करना है हमको, हर नोड पे जाके उससे जितनी भी कनेक्टेड ब्रांच हैं उनको सबसे पहले हमको उनका सम निकालना है कि एक नोड से कितना, एक ब्रांच से कितना चिल्ड्रन जुड़ा हुआ है। देन लेट सपोज यहाँ पे 3, ओके, देन 4 और देन 3, 4 और 3। देन हम इसको सबसेट सम प्रॉब्लम जैसा बनाएंगे कि 3 4 7। सबसे पहले हम 3 4 को जोड़ेंगे, पहले 3 फिर 4 को लिया फिर 3 को लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 3 4 को लिया, फिर हमने 3 4 3 को लिया। लेट सपोज यहाँ पे 5 है, ओके, लेट सपोज यहाँ पे 5 ब्रांच है। तो कैसे करते कि पहले कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो सो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देन तुम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि सबसे पहले 3 लिया हमने, फिर हमने 4 लिया, फिर ये 5 लिया, ठीक है। ये हम बर्गर बिंग के लिए ना, फिर हमने क्या किया, 3 प्लस 4 को लिया, 3 प्लस 5 को लिया, देन एट लास्ट हमने 3 प्लस 4 प्लस 5 को लिया, है ना। नाउ 3 प्रूफ प्लस, अब ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार 4 को लिया हमने, 4 को ले चुके, अब 4 और 5 को भी तो ले सकते हैं एक बार, ओके। तो ये बर्गर है ना, किंग के लिए होगा ये। अब हम अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, ये 3 है तो ये अगर 3 बर्गर है तो टोटल कितना मैकडोनल्ड बचा। अगर टोटल नोड अगर हम 13 माने तो 10, ओके। देन और 4 है तो कितना बचा 9, देन 4 ये 5 है तो कितना बचा 8, ओके। देन अगर ये 7 हो गया तो ये कितना बचा 6, अगर ये 8 हुआ तो ये कितना बचा 5, और 5 चौचा 9 और 3 12, तो ये कितना बचा 1, ओके। और बेसिकली आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल नोट अस, ओके। और देन 5 चौचा 9, देन ये कितना बचा 4, ओके। देन
this is the total number of pairs what we will draw. Okay, now this is the pairs. now रिवर्स भी हो सकता है, ये बर्गर, ये हमने 3 बर्गर लिया, और ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 बर्गर हो गया और हम इसको 3 को मैकडोनल्ड बना दें और बाकी को बर्गर किंग बना दें। तो अब इसका रिवर्स करते जाएंगे, 10 का 3, 9 का 4, 8 का 5, 6 का 7, मतलब बर्गर किंग। तो बेसिकली दिस इज द बेसिक अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नाउ हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बेसिकली हमारा फंडा क्या रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये ट्री है, ठीक है। वी विल, हम सबसे पहले लीफ नोड पे आएंगे, देन हम लीफ नोड पे आएंगे, देन आफ्टर दैट हम बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक में हम एक डीपी, हम इसमें एक 2D डीपी बनाएंगे जिसमें हम हर नोड के लिए उसके कितने 2D वेक्टर बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे हर नोड के लिए उसके कितने कनेक्टेड ब्रांच हैं उनको स्टोर करेंगे। बेसिकली हम ऐसे, बेसिकली हमारे पास V3, ओके। तो V3 क्या क्या स्टोर करेगा, बेसिकली V3 स्टोर करेगा 1, 1 और 2। ऐसे ही 2 क्या स्टोर करेगा, 2 स्टोर करेगा 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ओके। आफ्टर, मतलब अगर हम इसको ब्रेक कर दें 2 को, तो कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स उसमें बचेंगे 2 से। अगर हम 2 को यहां से निकालें तो कितने कनेक्टेड कंपोनेंट बचेंगे, बेसिकली ये है 4, ठीक है, ओके। ऐसे करेंगे इसको। देन अगर हम 1 पे जाएंगे तो बेसिकली कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी कि हम a ग्रेटर देन 0, तो अगर 1 है तो इसमें 0 बचेगा, तो बेसिकली हम उसके लिए कंडीशन डाल देंगे। तो ये हमारा मोटो है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि हम सबसे पहले DFS लगाएंगे, देन DFS के बाद हम इसमें सबसेट सम प्रॉब्लम यूज करेंगे, ओके। तो सबसेट सम प्रॉब्लम का हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। देन कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। देन तो सबसे पहले क्या है इसमें, हम एक इंट n और cn, ठीक है। देन हम क्या करेंगे इसमें एक लिस्ट लेंगे और लिस्ट में हम लिस्ट का एरे बना लेंगे, ठीक है। तो फुल लिस्ट का एरे एल, और देन हम कितना है, मैक्सिमम 5000 है, तो हम एक डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे LL इक्वल टू 5, मैक्सिमम 5001, okay. So then for int I equal to 10, I equal to n minus 1, बेसिकली हमको n minus 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज n minus 1 ही एजेस हो सकते हैं एक टी में। देन int x, y x by lx डॉट pv by और l by dot pbx, okay. Then we will, okay, now we will use a DFS, okay. DFS, let's suppose initial source node is 1, okay, void DFS then into I। तो बेसिकली पर्टिकुलर DFS का नोड क्या होता है, कोड क्या होता है, हम वही लिखेंगे सबसे पहले ताकि आपको समझ में आ सके कि
फाउंडेशन क्या है इस क्वेश्चन की, तो BSN N, तो ये ऑटोमेटिकली अगर ग्लोबल है तो फॉल्स ही होगा। देन तो हमने यहाँ पे TRUE, ओके। देन फॉर फोटो ITL I, इतना तो तुम जानते हो, अगर तुम इस वीडियो पे आए हो इसका मतलब तुम ग्राफ का। सो बेसिकली व्हाट विल वी डू हियर कि बेसिकली हम क्या बनाएंगे कि हर नोड को हर मतलब एक वेक्टर बनाना पड़ेगा हर नोड के लिए। तो हम एक 2D वेक्टर बनाएंगे सबसे पहले। तो वेक्टर सॉरी 2D वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर V और N, ओके। देन इसको DP नाम दे देते हैं, है ना, DP1, ओके। सेकंड थिंग इज दैट वी विल स्टोर ऑल द अभी जितने भी हमारे पास जितने भी एक, अगर हम 3 को हटा दें तो जितने भी इसके कनेक्टेड कंपोनेंट बचेंगे उनको सबको एक वेक्टर में स्टोर कराएंगे जिसका इंडेक्स नंबर कितना होगा 3, ओके, ताकि उस नोड से उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ओके देन तो उसी के लिए कोड है ये कि DP। तो हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली अगर हम 5 पे गए तो 5 गए, है ना, हम ऐसे गए कि ऐसे गए कि सबसे पहले हमने 1 पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए। देन हम लेकिन 5, लेकिन हम इस पे तो कोई नोड है नहीं, तो हमने क्या किया, हम एक और वेक्टर बनाएंगे। बेसिकली कुछ भी बना सकते हो, एल मैंने एरे बना दिया, तो इसको हम बोलेंगे DPN, है ना, और मैंने इसको DPI प्लस कर दिया, ओके, क्योंकि वो एक नोड तो है, वो खुद का तो इंक्लूड करेगा, ओके। देन आफ्टर दैट वो इस पे बैक ट्रैक करेगा, बैक ट्रैक करने के बाद ये जब ये कॉल हुआ तो इसके नीचे जाएगा, ओके। देन बैक ट्रैक करने के बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ओके। देन फॉर तो इसके लिए क्या होगा, DPI इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू DP ऑफ IT। तो बेसिकली DP, तो इसका मतलब क्या हो गया कि DP3 में कितना वैल्यू चला गया 1, यानी DP में एक नोड ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का यूज करते हुए DP1, ओके, I डॉट PV, ये हम क्या करेंगे DPI। तो ये वेक्टर है जो कि इसका इंडेक्स नंबर 3 हमने मान लिया, तो एक स्टोर आके वही एक एलिमेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे सेकेंड टाइम कि ये अगेन जाएगा नीचे, है ना, ये यहाँ पे ट्रेड हुआ। देन ये इसके बाद ये अभी बचा हुआ है तो ये यहाँ पे विजिट करेगा, तो ऐसे विजिट करने के बाद ये लीफ नोड हुआ, तो लीफ नोड पे क्या क्या हो गया DP7 इज इक्वल टू 1, ओके। देन ये 6 पे गया, देन 6 पे जाने के बाद इसने क्या किया, DP6 इज इक्वल टू कितना कर दिया, DP6 इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब ये DP6, अब ये आगे तो इसके कोई नोड है नहीं, तो ये एक लूप से बाहर आएगा, तो फिर DP6 क्या हो जाएगा, DP6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन ये वापस बैकट्रैक करने में 3 पे जाएगा, फिर ये नोड एग्जीक्यूट होगा, वो ए वाला कोड एग्जीक्यूट द्वारा होगा, तो आई की वैल्यू क्या है 3, तो DP3 इक्वल टू DP3 इज इक्वल टू DP3 इज इक्वल टू बेसिकली, तो हमको
डीपी आई को बार बार 0 भी करना पड़ेगा, तो फिर dp3 इज इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा, ये इसमें चला जाएगा 6 में तो 2 है ना। देन आफ्टर दैट, तो फिर ये क्या करेगा, dp1 i डॉट pv में कितना चला जाएगा फिर, तो सबसे पहले कितना गया था 1 है ना, और फिर ये dp1 3 डॉट dpi, तो इसमें कितना चला जाएगा 2, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया और यहाँ से आगे तो कहीं जा नहीं सकता। ओके, अब ये पूरा विजिट हो गया, तो देन हम dp3 प्लस प्लस कर देंगे, तो dp3 में कितना चला जाएगा फिर ये ना, तो ये dp3 में कितना चला जाएगा, dp3 टोटल कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे dp3 हो जाएगा तुम्हारा टोटल मिला के 1 2 3, तो फिर देन, तो नाउ dp3 कितना हो जाएगा, dp3 इज इक्वल टू, dp3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल एलिमेंट्स कितना कनेक्ट हो गया ऐसे dp3 प्लस प्लस, यानी सॉरी, तो हाँ, तो dp3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। देन ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, देन ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर डेट dpi प्लस प्लस हो गया, देन उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, नैपसैक का यूज करना पड़ेगा। बेसिकली ये ऐसे इटरेट होता चला गया, देन आफ्टर डेट हमने क्या किया, इसमें नैपसैक का यूज करेंगे, तो देन नैपसैक का यूज करेंगे तो हम सीधा गीक्स पर गीक्स से कोड उठा सकते हैं बेसिकली, क्योंकि तुमने डीपी पढ़ी नहीं है, तो तुमको अगर कोड करूंगा तो ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा, तो फिर हम सीधा गीक्स पर गीक्स से कोड उठाएंगे, सबसेट तो हम ऑल पॉसिबल सबसेट फाइंड करेंगे, ऑल पॉसिबल जितने भी सम पॉसिबल है उनको फाइंड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम ये वाला जस्ट यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। तो देन चेक कर लेंगे, अगर तुम ये वाला डीपी वाला प्रॉब्लम नहीं जानते तो तुमको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, देन उसके बाद ही समझ में आ जाएगा, इजी सही है। ओके, देन व्हाट विल वी डू, वी विल डू इट, ओके। देन ये ओके, तो यहाँ पे हमने एक अरे बना लिया, इसको हम लेट सपोज dp3 नाम दे देते हैं, सिंपल dp2 नाम दे देते हैं। तो बेसिकली अब क्या करेंगे यहाँ पर कि हम क्या करेंगे कि बेसिकली अगर कोई भी नोड लीफ पे है तो उसके लिए तो चलेगा नहीं, क्योंकि अगर उसके लिए चलाएंगे तो 0 है ना, और टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो उसके लिए तो लीफ नोड के लिए अगर हम देखें तो dp1 5 बेसिकली डॉट साइज, बेसिकली dp1 वेक्टर है, ये dp1 5 ये वेक्टर है, तो अगर हम इसका वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा 0, तो उस लीफ नोड को हमको इग्नोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कंडीशन लगा देंगे कि बेसिकली हम क्या करेंगे, एल साइज इज इक्वल टू dp1 डॉट आई डॉट साइज, ओके। इफ साइज कंडीशन लगा देंगे, साइज इज नॉट इक्वल टू 0, देन ये तभी हम पूरा टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देन हमने ये कोड, सॉरी, वी हैव डन इट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस पूरे कोड को कॉपी मारेंगे dp2, ओके। देन हम इसको सब कुछ चेंज कर देंगे यहाँ से। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सबसेट सम, तो तुमको थोड़ा बहुत डीपी भी पढ़ना पड़ेगा, और अगर तुम जानते हो तो
टू dp2 dp2 और ये dp2। ओके, देन हम अब हर नोड पे आ रहे हैं, तो बेसिकली हर नोड में तो स्टोर ना, ये हर नोड के लिए हमको चेक करना पड़ेगा 1 2। तो बेसिकली क्या किया हमने कि जैसे ही ये लेट सपोज ये अपना काम खत्म करके आया 3, बेसिकली ये 3 में पूरा काम खत्म करके आ गया है ना, तो ये 3 के बाद अब तो ये 2 पे जाएगा, यानी इस वेक्टर के जितनी भी ब्रांचेज हैं वो हमको मिल चुकी है ना। तो अब ये मिल चुकी हैं, देन हम यहाँ पे इसको नीचे इटरेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे इतना मतलब इटरेट किया। हम अलग से भी वेक्टर बना सकते थे बट उससे कोई फायदा नहीं है, हम जस्ट मतलब इसको अगर उसका काम ही यहाँ पे खत्म हो चुका है, देन अगर वो दोबारा विजिट ही नहीं करेगा, उसकी जितनी ब्रांच है वो हम स्टोर कर चुके हैं यहाँ पे, देन नाउ आफ्टर लूप मैंने कोई पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ब्रांच बचा है इसका जो हमने इटरेट नहीं किया हो। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि ये आई है, तो बेसिकली आई पेरेंट नोड है, तो dp1 डॉट साइज, तो हमने एक नोड बना लिया, तो बेसिकली तो हमने इसको साइज प्लस नाम दे दिया, ठीक है। और ये सम क्या है, तो टोटल सम हम निकाल सकते हैं बेसिकली। तो हम टोटल सम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे बोल दें कि बेसिकली क्या है कि इसमें सभी की समी तो स्टोर होंगे कि 1 है ना, 1 फिर 2 है ना, तो हम टोटल सम कितना दे सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक नोड जोड़ दें 5 2 6, तो टोटल नोड कितना, टोटल सम कितना हो सकता है 1 2 3 2 5। तो ज्यादा हमारी अगर हम चाहते हैं यहाँ पे एन भी ले सकते हैं, बट वो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली यही है कि कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अगर हम बार बार एन एन एन, तो फिर को एन स्क्वायर लूप तो ये चल जाएगा, अगर हम सबकी सम की जगह एन रख देंगे, एन भी रख सकते हैं बेसिकली, बट हमको जितना मैक्सिमम पॉसिबल सम है फिर उससे ज्यादा लेना ही क्यों है, तो फिर वो ठीक है। तो फिर वो एन फिर एन स्क्वायर और ये पूरा एन तो हर बार इटरेट करेगा, तो एन क्यू लूप हो जाएगा, तो बेसिकली वो फिर एरर दे देगा, बेसिकली टीएल ही देगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने सम निकाल दिया मैक्स सम। ओके, तो फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस में हमने एक एल एल और मैक्स सम नाम से वेरिएबल बनाया, और मैक्स बेसिकली आई, बेसिकली ये नोड है तो हमको यहाँ पे कोई और वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो ये जैसे इक्वल टू डी पी 1 आई और के, ठीक है। मैक्स साइज, तो इसको मैक्स सम, सॉरी मैक्स एस, ठीक है। तो हम इसको मैक्स एस प्लस 1, ये समझ में आ गया हो कि हमने मैक्स एस क्यों किया। अगर हम एन भी कर सकते थे बट एन इसलिए नहीं किया कि बाद में क्या होता कि वो टीएलई भी दे सकता था, बेसिकली हम इसके लिए चेक कर सकते हैं, चेक भी करेंगे, बट एक बार हम मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी पे काम करना चाहेंगे। बेसिकली फंडा यही रहता है कि हम जितना कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकें उतना कर सकें, इसीलिए हम इसको मैक्सिमम मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी, तो बेसिकली यहाँ पर ये देखो इस सेट क्या है यहाँ पे, तो हम ऐसा करते हैं कि सी को यहाँ पे एक नाम दे देते हैं ना, एल इक्वल टू आई। तो हम क्या करेंगे कि तो ये हमको ये नहीं चेंज करना पड़ेगा, फिर हम बेसिकली क्या करेंगे इस सेट, इसकी जगह हम क्या करेंगे dp1 और l, बेसिकली dpl वेक्टर है पूरा, है ना, ये इसका इंडेक्स है, ठीक है। तो ठीक है, तो सेम ऐसे ही करना पड़ेगा dp1, सॉरी dp1 ना, और ये सेम यहाँ से कॉपी करके और आपको ठीक है। तो आई थिंक ठीक है, देन आगे हम बढ़ेंगे। तो ये देखो हमेशा एक फंडा रहता है कि
ये क्या करेगा कि जितने भी पॉसिबल सम आ रहे हैं ना, जीरो से लेकर मैक्स सम तक, हम जितने भी पॉसिबल सम प्राप्त मतलब हम रिसीव कर सकते हैं, उसमें अगर वो सम हम अगर ले सकते हैं, लेट सपोज कि 1 2 3 4, ओके, तो हम 4 रिसीव कर सकते हैं तो 4 पे ट्रू दे देगा। 1 2 3 कर सकते हैं, ओके, ऐसे हम एग्जांपल ले 1 4 5, ठीक है, तो हम 1 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं और 10 भी कर सकते हैं, बट हम 2 नहीं कर सकते, तो 2 पे फॉल्स दे देगा। तो ये ऑल पॉसिबल सम है, अगर वो ट्रू है तो वो दो या मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स की सम से रिसीव किया जा सकता है, और अगर वो फॉल्स है तो वो कभी भी पर्टिकुलर सबसेट सम में कभी भी रिसीव नहीं किया जा सकता। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लास्ट उसको इटरेट करेंगे, लास्ट इसकी डीपी की लास्ट एलिमेंट, लास्ट रो को इटरेट करते हैं और देखने के लिए कि तुम अगर डीपी पढ़ोगे तो एक प्रॉब्लम आएगी मिनिमम डिफरेंशिएट सम के नाम से कुछ, तो तुम वहां से ये वाला लॉजिक समझ सकते हो बेसिकली, है ना। और इंट आई इक्वल टू 1 और आई इक्वल टू मैक्स एस, ओके, देन और आई प्लस प्लस, ओके, इफ dp1, okay, dp1 or basically what size लास्ट रो पे हम इटरेट करेंगे, तो और आई, अगर ये ट्रू है तो हम वो वाला सम रिसीव कर सकते हैं, बट हमको एक कंडीशन और यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। बट बेसिकली चेक करने का जरूरत नहीं है, बट हम चेक करना चाहे तो कर सकते हैं कि अगर तो बेसिकली हम इतना काम कर चुके हैं, इसमें साइज को 0 बना दिया हमने, देन dpi प्लस प्लस भी कर दिया, देन आफ्टर दैट dp1 बाई डॉट ये भी कर दिया, ओके, यहाँ पे हमने इसको, देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि आई से मैक्स तक जाएंगे और देन dp1 सॉरी dp2, ओके, बेसिकली वो एरे तो 2D DP के लिए तो यही बनाया हमने, साइज और मैक्स, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, आई शो नॉट इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू बेसिकली आई एंड एक तो आई हो गया, यानी ये वाला ले लिया, देन ये वाला, देन एन, तो फिर कितना होगा, आई तो ले लिया, फिर एन माइनस आई माइनस 1, ओके, ये वाली भी कंडीशन, टोटल रिमेनिंग कितना बचा, तो एन माइनस आई माइनस 1, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, स्वेट में ये वाला पेयर इंसर्ट करा देंगे, ओके, देन ये हमारा, और यहाँ से हम देन हम क्या करेंगे, सेट हमने बनाया था क्या, एक सेट भी बना लेते हैं यहाँ पे, सेट, ओके, ईयर वेल और xt, तो बेसिकली ये तो ब्लू, और ये बेसिकली ये तो है बर्गर बिंग, और ये, अब मैंने आपको एक केस भी बताया था ना यहाँ पर कि ऐसा भी हो सकता है कि बेसिकली अगर ये है 3,10, तो ये 10,3 भी तो एक पॉसिबिलिटी आएगी ना, कि जब हम उसका अपोजिट भी कर सकते हैं बेसिकली,
तो फिर हमको वो भी डालना पड़ेगा शायद, देखते हैं उनसे सही आता है क्या. आई एम नॉट चेकिंग नाउ बट आई विल ट्राई. n minus I minus 1 or I. Okay. Then for IT ST orders. So now check it. Test cases. It will take, come on. I suppose what is wrong, basically big mistake. Let's check it. Basically 119 पे आ रहा है. Oh, first thing is that semicolon. Okay. Second thing is that okay. Reading mistake. Maxim. Okay. Max S O. Okay. Access. Okay. So basically we have to declare n globally. Oh, basically we will forget to main thing of this question, which is list. Now one thing of mistake. What?
ओके, बेसिकली एरो साइन नहीं आएगा बेसिकली, क्योंकि पेयर्स है ना, नॉट अ मैप। What is the correct answer? I think so. Here, time limit exceed. Why time limit exceed? Let's check it. Why time limit is exceed, man. So basically LI DPI. Okay, okay, okay. DPI plus equal to IT. I think so. It should be. So let's check what is going wrong. Basically, if we will go up and down to DPI plus 1, okay, and what is going on wrong, man? I think. Okay. Savage. एक आठ दो 7 3 6 6 3 7 okay, 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 okay. Okay, now let's go for summation. Now check also for it. Yeah, this is correct. Now put it into compiler of courses. Yeah,
this is AC solution. Thank you. And basically this is my first video. So if any mistake I do,